Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the defects जो कि हमारे आईज में कभी कभार आ जाते हैं, जैसे कि हमें कभी दूर का नहीं दिखाई देता, किसी किसी को पास का नहीं दिखाई देता। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये हमारी आंखों में क्यों आते हैं और इन डिफेक्ट्स को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी होती है तो हम उसका सोल्यूशन देखते हैं, राइट। इसी तरीके से आँखों में भी कुछ तरीके के आपको डिफेक्ट्स मिल सकते हैं अलग अलग पर्सनस में, और इनका भी करेक्टिव जो है लेंसेज यूज़ करते हैं हम लोग। तो कौन से करेक्टिव लेंसेज हमें यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, उसको देखकर हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। एंड इस चीज़ में लेंसेज बहुत हेल्पफुल हैं, एंड दैट इज़ वी हैव स्टडीड लेंसेज अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विजन्स, ठीक है। विजन में किस तरीके के डिफेक्ट आते हैं, राइट, उनका करेक्टिव लेंस कौन सा है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस लेक्चर, ऑलराइट। And you all know that this lecture is actually for the school examination preparers and the students who are going to prepare for the Olympiads too. अगर आप knowledge के लिए भी lectures देख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, because you are going to get the good knowledge from here right now. Alright, that is the main thing. So make sure that you study from these video lectures and you share these video lectures to everybody. Right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write TTB08 in the search box of the Telegram app. So if you do so, our channel for the 8th class will appear in the drop down list. You can join that channel and access all the DPPs and study material along with the notifications of the YouTube lectures. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot. Actually, हम लोग as a team, we are providing you the quality lectures from Kota so that you can get all the necessary info to crack your examination. So we are trying to make sure that we are providing you all the quality lectures you need to get ahead in your career and definitely in your position also, right? So all you need to do is to study from these video lectures, as these are free of cost, right? So basically what you need to do is to study from these, and you need to share these video lectures to everybody, alright, every one of your friends you need to do that, so that उनको भी पता चले कि वो भी फ्री में बहुत अच्छी एजुकेशन गेन कर सकते हैं. दैट इज़ द मोटो बिहाइंड द स्टेप वी हैव टेकन फॉर यू ऑल. एंड इन अकॉर्डेंस टू दैट हम लोगों ने सिर्फ उसी के साथ साथ जो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू दी two type of packages on our website. So first of all you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. So if you do so, you are going to get like two type of packages. The number one is the full package, second one is the test series. Full package is actually for those students who need a complete guidance throughout the year. So if you are the one like you are not having a proper set, or you can say guidance of the study material, or from where do you study, what you need to do, what you need to study specifically for an exam, अगर आपको ये भी नहीं पता हो, then you are good to go for the full series. So you can join the full package. इसमें आपको study material के साथ साथ recorded and live classes and then homework submission feature, which is the most important because इसमें आपका रोल है कि आप homework करेंगे and then you will be submitting to us. राइट फिर आप देखिए बाई वीकली क्विजेज. सो बाई वीकली क्विजेज में क्या होता है कि आप लोग लेक्चर देखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्विज, देन यू आर गोइंग टू वॉच अ लेक्चर एंड देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्विज. सो बेसिकली इन अ वीक यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ट्वाइस द क्विज, राइट, एंड देन द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. सो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हम लोगों ने इंक्लूड इसलिए किए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि जो फाइनल एग्जाम आप देने की सोच रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है. अगर आप उससे पहले ही फैमिलियर हो जाते हैं तो इट वुड बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि अब आपका डर निकल जाएगा आफ्टर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दोज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. सो बेसिकली तो अगर आपको पूरा का पूरा लाइक यू नीड टू गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर, यू कैन जॉइन द फुल पैकेज. एंड इफ़ यू आर द वन जिन्हें बहुत पढ़ना पसंद है बट दे आर नॉट श्योर कि उन्होंने किसी एग्जाम स्पेसिफिक कितना पढ़ा है, सो इफ़ यू आर द वन देन यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज, यू कैन टेस्ट योर सेल्फ.
so that you can get the correct knowledge of yours कि भाई ये किसी एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं. You need to study more or all, right? So in that case you are going to get the periodic test papers, recorded and live classes, and bi-weekly quizzes. These are the three things you are going to get in the test series. So basically these two packages are the most important one. Alright, so these are available for every class 6 to 10. So definitely you can join according to your class and your choice, right? So if you are interested in buying them, you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you are not into the buying thing but you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So if you call us on this number, then you are going to getting all your queries will be resolved over there. So make sure you do that, right? तो अब हम प्रॉमिस कर लेते हैं. लेट्स प्रॉमिस दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिविजन इज द की. ऑलराइट, सो हम लोग देखते हैं टुडे ये जो लेक्चर 7 है, हम लोग देख रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शंस. ये लेक्चर एक्चुअली द लास्ट लेक्चर है. इसके बाद वी विल बी रिवाइजिंग एंड देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस फॉर द लाइट चैप्टर, ठीक है? और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली दिस इज अ लास्ट स्टार्टिंग लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन. तो क्या क्या डिफेक्ट्स हमारे विजन में हो सकते हैं और उनको किस तरीके से, किस लेंस से उनको हम ठीक करते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे. केयर ऑफ द आईज, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज. दैट इज सो इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज आईज हमारी पूरी बॉडी का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है. अगर हम लोग अपने आईज का बहुत केयर करते हैं देन दे कैन बहुत हद तक हम लोग उनको किसी डिफेक्ट से बचा सकते हैं इफ वी डू केयर. ऑलराइट, दैट इज अ मस्ट थिंग, यू मस्ट स्टेप यू नीड टू टेक, राइट? नाउ सी द ब्रेल सिस्टम. ये जो ब्रेल सिस्टम है ये ऐसे लोगों के लिए है जो देख नहीं पाते हैं. ये ब्रेल सिस्टम क्यों बनाया गया, कैसा होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे. ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आंखों में डिफेक्ट है, किन्हें सुनाई नहीं देता है. ऑलराइट, तो इस तरीके के जो पीपल्स हैं उन लोगों के लिए डिफरेंट एड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज एड्स जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ को और ईजी बनाने के लिए, सो दैट दे कैन लिव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, राइट? तो उन एड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. दीज आर द सब टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो देखिए हमारी आईज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की डिफेक्ट्स आते कैसे हैं. हमारी आईज नॉर्मली सही होती है, डेफिनेट सी बात है, राइट? लेकिन बहुत टाइम में या फिर बहुत सारे लोगों को डिफेक्ट्स आ जाते हैं. आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के ही बहुत बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं. सो बेसिकली ये डिफेक्ट उनमें आया कैसे और क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डिफेक्ट आया. अगर हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसका टेक केयर कर ले, तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि डिफेक्ट आए ही नहीं, राइट? सो देखिए द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन. जब हमारी आईज अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज कर देती है, ठीक है, मे बी इट इन द ओल्ड एज, मे बी इट इन दी वेरी मच यंगर एज, जब कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा खेलकूद में नहीं रहते. तो ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे दिन पढ़ते हैं बुक्स ही बुक्स एंड हो सकता है वो पूरा हमेशा लैपटॉप में और मोबाइल्स में इनमें लगे रहें पूरे टाइम. देन इट मे बी पॉसिबल दैट अब उनकी आंखों में डिफेक्ट हो सकता है. दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से ही हम लोग पास का भी देख पाते हैं, दूर का भी देख पाते हैं. सो इट इज क्लियर, ठीक है, हम पास का भी देख पाते हैं, दूर का भी देख पाते हैं. यही पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर किसी तरीके से कम हो जाती है, ठीक है, उस वक्त हमारे आईज में डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, राइट? In such conditions, the person cannot see the object distinctly and comfortably. As you can see the picture, this is blur, right? हमारी आईज सही है, ये बात बिल्कुल सही है, देखिए, पर ये ब्लर पिक्चर है. इस तरीके की पिक्चर डिफेक्ट्स आने पर आपको दिखाई देती है. इधर अगर आप जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है कि हमें पास का नहीं दिखाई देता, तो पास में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी ब्लर दिखाई देगी, हमें क्लियर नहीं दिखाई देंगी. तो एक्चुअली में डिफेक्ट का मतलब यही है कि क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाना, right? The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. So there are various defects which can occur in our eyes, ठीक है? But before that let's try to understand the normal vision.
नॉर्मल विजन के केस में जब हम दूर की चीजों को देख रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है, दूर की चीजों को देखने पर जो इमेज बनती है वो हमारे एग्जैक्ट रेटिना पे बनती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी अ क्लियर इमेज, राइट। जब नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्मल देख रहे हैं हम लोग, और नॉर्मल पर्सन या फिर नॉर्मल आई का, ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट फार पॉइंट होता है दैट इज इन्फिनिटी, राइट। तो मतलब इन्फिनिटी से आते हुए ऑब्जेक्ट की लाइट रेज भी एग्जैक्ट रेटिना पे बनती हैं उनकी इमेजेस, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी देम क्लियरली, राइट, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ये नॉर्मल विजन है दूर की चीजों के लिए, राइट। इसी तरीके से नॉर्मल विजन जो पास की चीजों के लिए होता है उसमें भी आप देख सकते हैं लाइट रेज आर गोइंग एंड देन आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड थ्रू द आई लेंस they are going to get a clear image on the retina, right। तो इस केस में भी नॉर्मल आइज के केस में ही पास की चीजों की भी बहुत ही क्लियर इमेज मिलती है। इसका मतलब पास की चीजें भी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, दूर की चीजें भी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। क्लियरली देखने का मतलब क्या हुआ, इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे बन रही है, ठीक है। यू कैन सी हियर एग्जैक्ट रेटिना पे बन रही है, एग्जैक्ट रेटिना पे बन रही है, ठीक है। सो if you want to see clearly and if you are seeing the things clearly, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज चीज़ों की आसपास की इमेज जो बन रही है आपकी आईज में, that is exactly on the retina, ठीक है। अब अगर यही इमेज रेटिना के आगे बन जाए या रेटिना के पीछे बने तब यहाँ पर हम डिफेक्ट मानते हैं, alright। So these are the two normal vision, we can say normal point or you can say the near point जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। So you can see the clear image of the near point, you can see the clear image of the far point. So in that case that is taken as the normal vision, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप ऑफ डिफेक्ट जैसे कि फर्स्ट है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, मतलब तुम्हें पास का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर के देखने पर आपको ब्लर चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। इट कैन बी लाइक ऐसा होता है, हो सकता है किसी कोई बच्चा अगर पीछे बैठता है तो उसे ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा होता है वो नहीं दिखाई देता क्लियरली, राइट। तो इन दैट केस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया और द शॉर्ट साइटेडनेस, राइट। नेक्स्ट आप देखो हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। इसमें पास का देख पाते हैं, पास का नहीं देख पाते हैं और दूर का देख पाते हैं, मीन्स दे आर गोइंग टू गेट द क्लियर इमेज ऑफ द फार ऑब्जेक्ट्स बट दे आर नॉट एबल टू रीड द बुक, क्योंकि वो पास होती है, राइट, तो वो ब्लर दिखाई देगी। इन दैट केस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। फिर आप नेक्स्ट देखिए प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है वो जनरली ओल्ड एज में होता है एंड प्रेसबायोपिया में द पर्सन इज नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली नियर बाय एंड द फार ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं, दैट इज द प्रेसबायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एस्टिग्मैटिज्म। जब कभी कुछ ऐसा होता है दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द यू कैन से द वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड यू आर एबल टू क्लियरली सी द हॉरिजॉन्टल वन। सो इस तरीके के कंफ्यूजन को, ठीक है, जो आईज में अक्सर तो नहीं होता बट स्टिल किन्हीं किन्हीं में होता है, राइट। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कलर ब्लाइंडनेस, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, and then the cataract, right। So these are the 6 defects. Now यहाँ पर 6 defects मैंने आपको बताए, right। इनमें से ये जो 3 defects हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, these 3 defects are the refractive defects, right। तो ये क्या होते हैं, ये आई लेंस की वजह से होते हैं। आई लेंस गॉट बिगर और स्मॉलर, इस केस में you are going to get these type of defects, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं दीज आर द डिफरेंट कॉजेज, दीज कम फ्रॉम द डिफरेंट कॉजेज, राइट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज वन बाय वन, ठीक है। तो पहले हम लोग कौन सा डिफेक्ट पढ़ते हैं, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। पास का दिखाई दे रहा है तुम्हें लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए जब ये दूर का देखने की कोशिश करती हैं, जिनको मायोपिया होता है, ठीक है, जब वो दूर का देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रेज आ रही हैं सो दे मीट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है, दैट इज द मेन कॉज एंड दे आर गोइंग टू सी दिस मच ऑफ ब्लर इमेज, राइट। तो इस केस में क्या होता है, मायोपिया के केस में क्या होता है, रेटिना के आगे इमेज बनती है एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू सी द क्लियर थिंग्स ऑफ द फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दूर की चीजों को वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अब आप देखिए
फार पॉइंट ऑफ शॉर्ट साइटेड आई, फार पॉइंट मतलब इनका जो इन्फिनिटी होना चाहिए था, मतलब एक नॉर्मल आई का जो इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट, वो अब आगे शिफ्ट हो गया है एंड लाइक समवेयर हियर पास में ही कहीं शिफ्ट हो गया, तो उनका आई का जो रेंज है देखने का वो नियर से लेके कुछ ही दूरी तक रह गया. दे आर नॉट एबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट दे कैन सी ओनली अप टू अ लिमिट, राइट. सो दे कैन लाइक नियर पॉइंट से लेके कुछ एक लिमिट तक वो देख पाते हैं, तो उनका फार पॉइंट एक्चुअली अब पास आ जाता है, राइट. वो पास आ जाता है, दे आर एबल टू सी द नियर थिंग्स क्लियरली, ऑलराइट. तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर इस केस में किस तरीके की डिफरेंसेस हमें मिलते हैं. नाउ सी, अ पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस. दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, ठीक है. आइदर दे कैन बी लाइक ब्लैक बोर्ड, दूर के ट्रीज, पार्क्स, माउंटेन्स, दे आर नॉट एबल टू सी दैम. मे बी वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ पाते हों, जैसे दूर से हम लोग देखने की कोशिश करें, राइट. इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि भाई उन्हें क्या है, मायोपिया, राइट. दिस इज अ डिफेक्ट नेम्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस. सो यू आर एबल टू सी द नियर बाय थिंग्स बट यू आर नॉट एबल टू सी द फार अवे थिंग्स, राइट. फिर देखिए, द फार पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन मे बी ओनली अ फ्यू मीटर्स रेदर देन एन इन्फिनिटी. सो बेसिकली जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होना चाहिए था वो वहां नहीं होके दे आर नॉट एबल टू सी द क्लियरली, इन्फिनिटी वाली चीजें नहीं देख पाते हैं, उनका फार पॉइंट कुछ ही पास आ जाता है, वो कुछ ही दूरी तक देख पाते हैं, राइट. दे आर नॉट एबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट, दे आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अप टू अ शॉर्टर रेंज, राइट. उनका रेंज शॉर्ट हो जाता है, दे आर एबल टू सी ओनली द नियर बाय थिंग्स, राइट. This defect occurs if a person's eyeball is larger than the usual diameter. So basically अगर eyeball की जो diameter usually होना चाहिए था उससे जब बड़ा हो जाता है, so basically it should be like here, इतना diameter होना चाहिए था ताकि ये exact position retina पे बने, but अब इसका elongation हो जाता है तो ये basically अब बड़ा हो गया. So images is going to form in front of the retina, that is why you are not going to get the clear image, right. आपको दिखाई देगा but blur दिखाई देगा. In such a case the image of a distant object is formed in front of the retina and that is why it is like the blur, ठीक है. It is because the eye lens remains too converging forming the image of the object in front of the retina. ये जो आई लेंस है ये इसने ज़्यादा कन्वर्ज करके यहीं पर ही कन्वर्ज कर दिया इंस्टेड ऑफ द रेटिना, राइट. तो लाइक इट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हेयर. अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है जो आई में हो चुकी है, राइट. नॉट एबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो इस केस के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे और किस तरीके से इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर पाएंगे. सो देखिए, करेक्शन लेंस हम लोग यूज करेंगे कनकेव लेंस, राइट. कैसे कनकेव लेंस हेल्प कर सकता है, लेट्स सी. टू करेक्ट शॉर्ट साइटेड विजन अ डाइवर्जिंग लेंस concave lens of suitable focal length is placed in front of the eye. देखिए क्या होता है, देखो ये concave lens हम लोगों ने रख दिया. अब ये concave lens एक्चुअली में क्या करेगा, एक्चुअली में ये डाइवर्ज करेगा. कैसे करेगा, जो दूर की चीजें होती हैं उन्हें वो पास दिखा देगा ताकि वो आई अच्छे से उसे देख सके एंड क्लियर इमेज बन सके, राइट. तो देखो दूर से आने वाली जो भी लाइट रेज होंगी, दूर से आने वाली जो भी लाइट रेज होंगी वो इस लेंस पर जाएंगी, राइट. ये लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, इस लेंस के फोकस पे जो कि पास है, राइट. इस इमेज को एक्चुअली आई लेंस देखेगा और उसके बाद जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे बनेगी. सो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहा होता है, राइट. अगर कोई भी पर्सन लेंस से देखने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट की एक इमेज देख रहा होता है जो कि लेंस बनाता है. दिस लेंस, दिस कनकेव लेंस इज गोइंग टू मेक एन इमेज. उस इमेज को ये आई देखती है और फिर उसकी इमेज रेटिना पे बनती है टू सी द क्लियर थिंग्स, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे एक धोखा एक तरीके से किया गया है. वो क्या किया गया है कि हमने एक ट्रिक यूज की है, वो ये जो दूर वाली ऑब्जेक्ट्स थी उन्हें पास ला दिया गया. कैसे, उनकी ही इमेज हम लोगों ने पास बना दी. नाउ द आईबॉल कैन सी इट क्लियरली, राइट. तो दैट इज व्हाई इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया he or she can use the concave lens, right, of the exact focal length. सभी का डिफरेंट फोकल लेंथ होता है, राइट. तो इस केस में क्या हो सकता है कि आप आईज का चेकअप करवाएं,
उसका फोकल लेंथ देखे एंड देन यूज द एग्जैक्ट दैट इज शुड बी यूज्ड बाय दैट आई, ठीक है। उस आई के लिए जो करेक्टिव लेंस है वो कनकेव है, बट इस कनकेव का फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द आई इटसेल्फ, राइट। तो सभी का चेकअप अलग अलग होगा, सभी के डिफरेंसेस होते हैं, राइट। किसी का भी चश्मा सेम नहीं होता है। The rays of light from distant object are diverged by the concave lens so that final image is formed at the retina. उनको डाइवर्ज करने के बाद यू कैन सी द रेटिना पे है। अब ये जो इमेज बन रही है वो इस ऑब्जेक्ट की बन रही है जो कि इन्फिनिटी पे थी, है भी, बट एक्चुअली में उसकी इमेज यहाँ बन रही है एंड दिस इमेज इज गोइंग टू बी एट द रेटिना और उसके बाद क्लियर इमेज दिखाई देगी उस पर्सन को, राइट। इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगी, दैट इज जो इन्फिनिटी पे है, राइट, देन फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज सो चूजन दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द फार पॉइंट ऑफ द शॉर्ट साइटेड आई। किस तरीके से हम लोग चूज करते हैं, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी होती है तो कनकेव लेंस का फोकस हम लोग किस तरीके से चूज करते हैं, ये आई, ये ह्यूमन आई कहाँ तक देख पाती है, पहले तो इसका टेस्टिंग होता है, तो वो डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, राइट। एक आई यू कैन से एक टेस्ट होता है जिसे आई टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स आपको वेरियस साइजेस के लेटर्स आपको पढ़ने के लिए बोलता है, राइट। तो वो जो साइज के लेटर्स होते हैं जो वो उसे पढ़ने के लिए बोला जाता है, इन दैट केस उस वक्त वो क्या चेक कर रहे होते हैं कि आई बॉल की यू कैन से नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट, जो कि अब चेंज हो गया है, वो कितना है। जो आई बॉल का फार पॉइंट वो कैलकुलेट करेंगे, उसी का फोकल लेंथ वो इस कनकेव लेंस को चूज करेंगे, राइट। एंड देन वो क्या करेंगे, इस लेंस का फोकल लेंथ उस पर्सन के जो फार पॉइंट है उसकी इक्वल चेंज करेंगे, उसके इक्वल रखेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू गेट देयर करेक्टिव लेंसेज। सो ही और शी इज टोटली एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली यूजिंग द कनकेव लेंस, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं और इवन वी कैन रिमूव द डिफेक्ट, राइट। तो अब ये क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो रेज ऑफ लाइट जो आंखों में जा रही होती है वो आती तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट से हैं, बट बिकॉज ऑफ द लेंस, बिकॉज ऑफ दिस कनकेव लेंस, वो ऐसा लगता है वो पास के पॉइंट से ही आ रही है, जितना वो रेंज देख पाती है वो आए, राइट। तो अगर वो पास की चीजें देख पा रही है और इमेज जो दूर वाली चीज की इमेज लेंस उस पे बना रहा है, नाउ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग, हाउ अ पर्सन कैन यूज द करेक्टिव लेंस टू सी द थिंग्स क्लियरली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। अब यहाँ पे दूर की चीजें नहीं देख पाता पर्सन, पास की चीजें दूर की चीजें देख पाता है और पार की चीजें नहीं देख पाता है। सो इन दैट केस इनका जो नियर पॉइंट होता है, इनका जो नियर पॉइंट होता है वहां से अगर कोई लाइट रे जाएगी, वहां से कोई लाइट रे जाएगी तो वो रेटिना के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर रेटिना के पीछे इमेज बनती है तो इस केस में भी उसे ब्लर चीजें दिखाई देंगी नियर पॉइंट पे। फार पॉइंट पे देखिए जो इसका यू कैन से फार पॉइंट पे जो उसकी इमेज बनेगी, राइट, वो तो बिल्कुल क्लियरली ऑन द रेटिना बनेगी, बट पास की चीजों के लिए क्या होगा, उसकी इमेज पीछे बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में शॉर्ट आई बॉल हो जाता है, इमेज पीछे बन जाती है, राइट। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा लेंस यूज करना है जिससे पीछे बनने वाली इमेज रेटिना पे बने, इस आई की रेटिना पे बने, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए करेक्टिव लेंस को यूज करने में, ठीक है, उनको चूज करने में। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इस बार क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में नियर पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। मतलब जहां तक 25 सेंटीमीटर तक उसे देख पाना होना चाहिए था, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर तक नियर पॉइंट होता है, तो वो वहां तक देख सकता था, बट अब क्योंकि उसे अब हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो द पर्सन कैन सी द थिंग्स विच इज far from the near point. So the near point of that human eye is going to be like getting a back side, वो अब far point की तरफ जा रहा है, तो that range is like far from the eye, right? So this is the thing we need to understand. A person who can see distant objects clearly but cannot focus on nearby objects is far-sightedness, whereas the normal eye has a near point of about 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की चीज़ें को वो नहीं देख पाएगा, राइट, वो उसे ब्लर दिखाई देंगी, मे बी ही इज़ लाइक गेटिंग अ प्रॉब्लम वाइल रीडिंग द बुक्स, न्यूज़पेपर, और जो भी पास की चीज़ें हैं वो उसे क्लियरली नहीं दिखाई देंगी, डेफिनेटली, राइट।
फिर देखिए अ फार साइटेड पर्सन मे हैव नियर पॉइंट सेवरल मीटर्स फ्रॉम द आई, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था नियर पॉइंट, बट अब वो पीछे चला जाता है एंड इट लाइक फ्यू मीटर्स, राइट. दिस डिफेक्ट में अगर if the diameter of the person's eyeball is smaller than the usual, ठीक है, या फिर जो लेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता. तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए था आई बॉल, यहाँ पर होना चाहिए था रेटिना, राइट, बट इट इज लाइक हियर. तो इमेज बन रही है पीछे, दैट इज वाई दे आर नॉट गोइंग टू गेट द क्लियर इमेज, राइट. रेटिना के पीछे बनती है. इन सच अ केस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द नॉर्मल नियर पॉइंट, द इमेज ऑफ द पर्सन इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है. इट इज बिकॉज द लेंस ऑफ द आई इज नॉट सफिशिएंटली कन्वर्जिंग टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द नॉर्मल नियर पॉइंट. सफिशिएंटली वो वहां पर नहीं है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है. तो दैट इज द थिंग. नॉर्मल पॉइंट जहां यहाँ होना चाहिए था, मतलब क्लियर इमेज उसे इस ऑब्जेक्ट की भी दिखाई देनी चाहिए थी, बट अब नहीं दिखाई देती. तो ये नॉर्मल पॉइंट, इस आई का नॉर्मल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, और भी पीछे शिफ्ट हो गया. सो अब इसकी इमेज यू कैन सी इट इज मेक फॉर्मिंग ऑन द रेटिना. तो वो इस जगह की चीज़ों को तो क्लियरली देख पाता है, बट वो नियर पॉइंट की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है. तो बेसिकली नियर पॉइंट इज लाइक वो जो है पीछे खिसक गया है कुछ फ्यू मीटर्स अप टू, राइट. सो इसका करेक्टिव लेंस क्या होना चाहिए, इसका करेक्टिव लेंस होना चाहिए कन्वेक्स लेंस, राइट. सो वी आर गोइंग टू यूज कन्वेक्स लेंस हियर. अब क्या होगा, कन्वेक्स लेंस इज द रीजन जिसकी वजह से वो बच्चा या फिर वो पर्सन क्लियरली देख पाता है. पास की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है, दूर की चीज़ों तो वो पहले ही देख पाता था, ठीक है. अ फार साइटेड पर्सन हैज द नॉर्मल फार पॉइंट बट needs a converging lens in order to focus objects which are as close as 25 centimeter. So basically जब वो ये convex lens को use करेगा तो क्या होगा, तो देखिए ये जो convex lens है यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स की इमेज वो और भी पीछे बना देगा, ताकि यहाँ पर ये जो एंड डैश यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ की इमेज तो वो पर्सन देख पाता था, अच्छे से देख पाता था, राइट. तो इसका मतलब हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो पास की चीज़ों की इमेज दूर बना दे, ताकि दूर की चीज़ों को वो इजीली देख पाए आई, राइट. तो ये कन्वेक्स लेंस यही काम करता है. ये कन्वेक्स लेंस एक्चुअली में क्या करेगा, पास की चीज़ों की इमेज दूर बना देगा, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट एंड द क्लियर इमेज ऑफ द थिंग्स फॉर अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, ठीक है. The converging lens of correct focal length will cause the virtual image to be formed at the actual near point of the far-sighted person's eye. Exact point पे बनने की कोशिश करेगा, उसका जो भी near point है, ठीक है, जो change near point है उस जगह पर image को बनाएगा ये convex lens, so that the person can see the clear image of the nearby objects, ठीक है. So a convex lens is used for this thing. Now the third thing you need to know is the presbyopia. प्रेसबायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है, बिकॉज ओल्ड एज तक जाते जाते जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को हेल्प करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती हैं सिलियरी मसल्स, राइट. ये सिलियरी मसल्स हो जाती हैं वीक, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑन द far away objects. So basically presbyopia generally occurs at the old age and the correction lens is the bifocal lens. मतलब एक ऐसा लेंस जो में कनकेव भी है कन्वेक्स भी है, bifocal lenses हैं टू, ठीक है. तो you can see like this, इस तरीके के तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारी हो सकता है इट मे बी पॉसिबल लाइक कि ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स के जो चश्मे होते हैं वो कुछ इस तरीके के बने होते हैं, राइट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तुम्हें अलग तरीके का लेंस दिखाई देगा, इट इज नॉट कलर्ड, ठीक है. ऐसे लेंसेज तो बिल्कुल क्लियर होते हैं, राइट, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट यू विल, तुम देखना उसे ध्यान से, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा दैट ये वाला एरिया इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट एंड ऊपर वाला एरिया इज डिफरेंट. ऊपर वाले एरिया से दे कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर दूर की चीज़ों को वो देख पाते हैं, और नीचे वाले एरिया से दे कैन लुक अप टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो देखिए दिस डिफेक्ट एक्चुअली अराइजेज विद एजिंग, ऑलराइट, ये एजिंग के साथ होता है. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नाइदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और डिस्टिंक्टली. ना तो वो पास की चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं, ना ही वो दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं. दिस इज बिकॉज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीजेज. ये पावर डिक्रीज हो जाती है बिकॉज
ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। धीरे धीरे जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। सो वो सिलियरी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होकर और रिलैक्स होकर आईज को दूर की चीजें और पास की चीजें दिखाने की कोशिश करती थी, वही वीक हो जाएंगी। सो द लेंस इज नॉट एबल टू फोकस on the nearby objects as well as on the far away objects, right? That is the main thing, and that is why this type of defects occurs. Alright, this defect can be corrected by using bifocal lenses. So we use the bifocal lens. अब यहाँ पे देखिए lower part जिसके अंदर convex lens होता है, so this lower part is actually a convex lens and is used for reading purposes. पास की चीजें देखने के लिए वो यूज होता है। Whereas the upper part यानी ये वाला part जो है upper part, it consists of a concave lens and ये दूर की चीजों को देखने के लिए help करता है, right? So that's how this presbyopia can be corrected. Alright, now let's talk up to the fourth defect, that is astigmatism. So ये जो astigmatism होता है, अब आप इसे देखिए, ये है normal wire gauze, ठीक है? ये जो वायर गॉज है, यू कैन सी कि भाई ये तो एक यू कैन से स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है एंड देयर आर वेरियस स्क्वायर्स इनसाइड इट। आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस क्लियर दिख रही होंगी, बिल्कुल सीधी दिख रही होंगी, राइट? लेकिन अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म, उसे ऐसे नहीं दिखाई देता। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे फोकस करता है तो उसे वर्टिकल लाइन कर्व दिखाई देती है, और जब वो वर्टिकल लाइन पे फोकस करता है तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व दिखाई देती है। दैट इज द डिफेक्ट नोन एज द एस्टिग्मेटिज्म। ऑलराइट, so a person suffering from this defect cannot simultaneously focus on both horizontal and vertical lines of wire gauze. वो एक साथ दोनों को स्ट्रेट नहीं देख पाता, ठीक है? अगर वो हॉरिजॉन्टल पे फोकस कर रहा है तो वर्टिकल लाइंस उसे कर्व दिखाई देंगी, और अगर वो वर्टिकल पे फोकस कर रहा है तो उसे हॉरिजॉन्टल कर्व दिखाई देंगी बेसिकली, और अगर वो हॉरिजॉन्टल पे फोकस कर रहा है तो वर्टिकल लाइंस उसे कर्व दिखाई देंगी। सो बेसिकली वो एक साथ दोनों पे फोकस नहीं कर पाता, वो दोनों सीधे नहीं दिखाई देते उन्हें, ठीक है? दैट इज द डिफेक्ट। This defect arises due to the fact that cornea is not perfectly spherical and has different curvatures for horizontally and vertically lying objects. In that case, इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो इस केस में ये क्योंकि हमारी जो आई बॉल होती है दैट इज कर्व, ये बात सबको पता है, बट इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, राइट? एंड इसकी वजह से अलग अलग कर्वेचर्स हो पाते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ ऑब्जेक्ट्स के लिए, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू फोकस आइदर वन ऑफ देम, ठीक है? वो वन ऑफ देम में ही करेगा, या तो वो हॉरिजॉन्टल पे फोकस कर पाएगा, उनको स्ट्रेट देख पाएगा तो वर्टिकल कर्व चीजें दिखाई देंगी, और जब वो वर्टिकल को देखने की कोशिश करेगा तो हॉरिजॉन्टल चीजें कर्व दिखाई देंगी, एंड दैट इज द डिफेक्ट नोन एज एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है? इनको जो है करेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स इन वन डायरेक्शन आर वेल फोकस्ड, वेयर एज ऑब्जेक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर नॉट well focused, right? इनको करेक्ट करने के लिए let's see what we can use. So the corrective lens is the cylindrical lenses. We use cylindrical lenses for the purpose जिससे astigmatism can be corrected, right? This defect can be corrected by using cylindrical lenses. The cylindrical lenses are designed in such a way so as to compensate for the irregularities in the curvature of cornea. So basically कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसको कंपनसेट करने के लिए अलग अलग तरीके से जो सिलेंड्रिकल लेंसेज है उन्हें बनाए जाते हैं, एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय दैम। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ डिफेक्ट, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी आईज में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, राइट? द कॉन शेप्स एंड द रॉड शेप्स, राइट? तो देखिए रेटिना ऑफ आवर आईज हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैविंग शेप्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है? बहुत सारे होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट with different degrees of brightness and darkness, whereas the cone shaped cells respond to colors. You can definitely see the colors. So basically अगर you can see the colors very much in a cool way या फिर on in a correct way, now you have various types of cone shaped cells inside your retina, right? और अगर आप जैसे हम लोग बोलते हैं ज़्यादा ब्राइटनेस एंड बहुत ज़्यादा डलनेस जो लाइट में होता है, डिम एंड द ब्राइट लाइट, राइट? तो इसको लेने के लिए, इसको सेंस करने के लिए वी हैव रॉड शेप सेल्स, राइट? तो दो तरीके से थे। कलर लाइट की ब्राइटनेस
ठीक है, और लाइट की डिमनेस को सेंस करने के लिए देयर आर रॉड शेप सेल्स, एंड जो कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सके, कलर्स को सेंस कर सके, इसके लिए वी हैव कोन शेप सेल्स, राइट। अब देखिए डिम लाइट में जो रॉड्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, बट कोन्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्राइट लाइट में ही सेंसिटिव होते हैं, तो दैट मीन्स ब्राइट लाइट में ही यू कैन सी द कलर्स, ऑलराइट। The cones are sensitive to red, green and blue colors of the light to different extent, right? वो generally red, green and blue इनसे ही sensitive होते हैं, right? अब आप देख सकते हैं ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि इनको रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी नहीं रखते। Some cone shaped cells that respond to certain specific colors only, उन्हें सिर्फ कुछ ही कलर्स दिखाई देते हैं, उन्हें सारे कलर्स दिखाई नहीं देते। So it is like maybe it is genetic or disorder, ठीक है, maybe it is genetic disorder or maybe by other things also. Such persons cannot distinguish between certain colors, लेकिन कुछ वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं बट कुछ certain colors को वो नहीं देख पाते, उनको सेंस नहीं कर पाते because of they have very much less cone shaped cells. Such persons are said to have color blindness, और ऐसे लोगों को मतलब इस तरीके के डिफेक्ट वाले पर्सन्स को कलर ब्लाइंडनेस जो इनको होती है जनरली उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, बट ये जो कलर ब्लाइंडनेस है दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। नाउ द सिक्स्थ वन इज द कैटरैक्ट। सो देखिए क्या होता है, कई बार हमारी आई लेंस जो होती है, आई लेंस के सामने एक ब्लरनेस यू कैन से एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट अब क्योंकि उसके सामने एक लेयर आ जाती है तो लाइट रेज हमारी आईज में एंटर नहीं कर पाती एंड वी आर नॉट एबल टू सी, मतलब पार्शली और कंप्लीटली डार्कनेस हो जाती है, राइट, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ सम पीपल इन द ओल्ड एज द आई लेंस बिकम्स हेजी और इवन ऑपेक, ऑपेक बनते ही जो लाइट रे है वो लेंस तक पहुंचेगा ही नहीं, लेंस तक नहीं पहुंचेगा तो नो इमेज, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, कंप्लीट डार्कनेस, राइट, दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। और एक्चुअली में ये जो है बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज और लॉस इन विजन ऑफ द आई। Cataract can be corrected by surgery leading to normal vision. So it is like this is the defect which can be like corrected, ठीक है, तो by using by laser और by surgery ये जो कैटरैक्ट का है प्रॉब्लम दिस कैन बी सॉल्व। तो वो क्या करते हैं, सर्जरी से उस लेयर को हटा देते हैं डॉक्टर्स, राइट, और जिसकी वजह से नाउ अब सारी लाइट रेज लेंस के अंदर से जा सकती हैं एंड नॉर्मल जो है रिफ्रैक्शन हो सकता है एंड द इमेज कैन फॉर्म, राइट। तो दिस कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द सर्जरी, ठीक है। नाउ दीज आर द 6 डिफेक्ट्स जो हमें देखने थे। हाउ, अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द केयर ऑफ द आईज, राइट। सो बेसिकली आप लोग किस तरीके से अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं, और राइट, एंड हाउ यू शुड बी लाइक केयरिंग राइट नाउ। हो सकता है अभी तक आप केयर नहीं कर रहे हो बट अब आपको करनी है सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ अकरिंग फ्रॉम दीज डिफेक्ट्स, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर केयर रखें एंड प्रॉपर चेकअप बाय गोइंग टू द डॉक्टर, रेगुलर चेकअप हम लोग करवाएं अपनी आईज का, ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। अगर आपको ऐसे एडवाइस किया गया है कि आप स्पेक्स यूज़ करो देन यूज़ इट, दैट शुड बी यूज बाय यू। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर योर आईज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ब्राइट लाइट में स्टडी कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही डिम लाइट में स्टडी कर रहे हैं। लाइट हैज टू बी लाइक अप टू द गुड लेवल, ठीक है, नॉर्मल। ऐसा नहीं हो रहा आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है तो आपको बहुत ही स्क्रंच करके देखना पड़ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से देखना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। दैट शुड बी द लाइक यू कैन से इन द कंफर्टेबल वे, ठीक है, लाइट शुड बी अमेंडेबल, दैट मीन्स अगर ऐसा आप करते हैं तो देखिए इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स, तुम बहुत ज़्यादा जोर लगाओगे, दैट इज कॉज्ड बाय दैट। Too much light like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. So that's why you should not even see that, right? We should not look directly at the sun or a powerful light. इससे भी हमारे retina पे असर होता है because we have rod-shaped cells, right? Which are sensitive to the bright light. We should never rub our eyes, never, never, never. If particles of dust go into our eyes, we should wash our eyes with clean water. If there is no improvement, we should go to a doctor at the earliest. So basically you should not rub it. Make sure you wash it out daily. Not daily but very much frequent, like 6 hours. You can wash your eyes in 6 hours, right? That should be done.
वी शुड वॉश अवर आइज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, ठीक है, बार बार उन्हें धोते रहिए। वी शुड ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, ऐसा नहीं होगा, कई बच्चे क्या करते हैं बहुत ही पास से पढ़ते हैं, राइट, बहुत ही ज़्यादा पास से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो हमारा नॉर्मल लेवल है वहाँ तक रखना है, ठीक है, आपको ज़्यादा पास नहीं पढ़ना, ज़्यादा दूर से नहीं पढ़ना है, नॉर्मल लेवल पे रखिए, उस पर पढ़िए, ठीक है। वी शुड नेवर रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू आवर आइज और कीपिंग इट टू फार, राइट। तो ये देखिए केयर में, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट द गुड डाइट, ठीक है, बिकॉज डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बैलेंस डाइट, यू हैव लर्न दैट इन केमिस्ट्री, राइट, तो बैलेंस डाइट का भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है, यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट, राइट। तो देखिए आपको आइज के लिए सबसे ज्यादा विटामिन ए की जरूरत होती है, ठीक है, तो इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स, आई मे आल्सो सफर, लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, राइट, तो यू शुड डेफिनेटली स्टे दैट। अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, विटामिन ए को लेने के लिए क्या कर सकते हो, तुम कुछ चीज़ें खा सकते हो, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको ले सकते हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में विटामिन ए होता है, मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल ले सकते हो, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो तुम अपने रियल में डाइट में यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन गेट रिच इन द विटामिन ए एंड देन योर आइज विल बी लाइक गुड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेनली केयर करना है, उसको फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, ज़्यादा पास ज़्यादा दूर से नहीं पढ़ना है, प्रॉपर लाइट में पढ़ना है, एंड ढेर सारा विटामिन ए लेना है, ठीक है, ओनली देन यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज डेफिनेटली, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेल सिस्टम। सो देखिए ऐसे पीपल विच आर लाइक विच कैन नॉट सी, ठीक है, ऐसे पीपल उनके लिए ब्रेल सिस्टम बनाई जाती है, बिकॉज दे कैन नॉट सी, दैट्स वाई दे कैन नॉट स्टडी, एंड टू मेक दैम एजुकेटेड, टू लेट देम नो अबाउट द वर्ल्ड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं बट अ पर्सन डिज़ाइन दैट, इवन आपको पता है ये ब्रेल सिस्टम जिस पर्सन ने बनाया था वो खुद एक ब्लाइंड पर्सन थे, वो नहीं देख पाते थे, एंड उन्होंने फिर ब्लाइंड लोगों के लिए कि वो भी पढ़ सके, वो भी सीख सके, वर्ल्ड के बारे में जान सके, सो ही डिकोड अ सिस्टम एंड दैट इज नोन एज द ब्रेल सिस्टम, राइट। अब इसमें क्या होता है, ब्रेल सिस्टम में क्या किया जाता है, जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें पेपर में उनको लाइक राइज किया जाता है, ठीक है, तो मीन्स भी उनको कुछ यू कैन से यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं, एंड वो सिंबल्स में लाइंस होती हैं, डॉट्स होते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैम टू। तो देखिए द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इज ब्रेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू कैन से रिसोर्स है, क्योंकि यही सिस्टम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। Louis Braille himself, a visually challenged person, developed a system for visually challenged persons and published in 1821. So ये Braille system 1821 में आया जब Braille ने क्या किया, लोगों के लिए ये system बनाया so that they can learn, right? There is Braille code for common languages, mathematics, scientific notation. Many Indian languages can be read using the Braille system. तो यहाँ पे हर एक लेटर का जैसे A, B, C, D, राइट, तो इन हर एक लेटर का कुछ एक सिंबल बनाया, ठीक है, बाय रीडिंग दैट सिंबल दे कैन रीड द नॉर्मल थिंग, इवन मैथमेटिक्स के साइन, साइंटिफिक नोटेशंस, राइट, एंड अदर लैंग्वेजेस, वो सब भी ब्रेल सिस्टम से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द थिंग, ब्रेल सिस्टम के अंदर 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, टोटल सभी को मिला के 63 डॉट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। हर एक कैरेक्टर में क्या होता है, एक लेटर होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकता है, कॉमन वर्ड हो सकता है, या फिर ग्रामेटिकल साइन हो सकता है, ठीक है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, तो इस तरीके से उनको जो अरेंज किया जाता है, राइट, डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज, ठीक है, सो देयर आर 2 वर्टिकल रोज, हर किसी में 2 वर्टिकल रोज है ना, यू कैन सी दैट, and of 3 dots each, so there are like 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, ठीक है, तो you can see that इस तरीके से जो ब्रेल सिस्टम है उसको बनाया जाता है, उसमें मतलब एक्चुअली वो है। Patterns of dots to represent some English alphabets and some common words are shown below. So basically if they are going to see, तो यहाँ पर उन्हें 2 डॉट्स मिलेगा, if they are going to see A, तो A में 1 डॉट, T में
इस तरीके के पैटर्न में 4 डॉट्स। तो अगर वो इसे छूते हैं, बिकॉज ये डॉट्स क्या होते हैं, पेपर में उभरे हुए होते हैं, दे कैन टच एंड दे कैन सेंस दीज डॉट्स, ठीक है। तो जब वो इन डॉट्स को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैट। लेकिन आपको पता है ये जो पैटर्न है, मतलब इसको सी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको टी कहते हैं, ये उन्हें रिमेंबर करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन दे डू इट, जब वो इसे रिमेंबर करेंगे तब वो नॉर्मली चीज़ों को पढ़ पाते हैं, ठीक है। एंड को देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 डॉट्स, ठीक है। कॉमा को देखिए 2 डॉट से किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ कॉमन वर्ड्स इस पूरे 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। तो इन सब में कोई कॉमन वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ठीक है, नंबर, साइंटिफिक नोटेशंस, राइट, ग्रामेटिकल, यू कैन से साइंस, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब देखिए दीज पैटर्न्स व्हेन एम्ब्रॉस्ड on braille sheets help visually challenged person to recognize words by touching. So they touch it and then they can get the correct word also. To make them easier to touch, these dots are raised slightly. इनको क्या किया जाता है, पेपर में उभारा जाता है। तो जब ये उसको टच करेंगे they can feel the dots, ठीक है, and they can study it. Visually challenged people learn the braille system by beginning with letters, then special characters and letter combination. जैसे हम लोग बचपन में धीरे धीरे पढ़ते थे ना, पहले हमने ABCD सीखा एंड देन फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल एंड देन वी हैव मेक दिस स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। बिल्कुल सिमिलरली वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, पहले उन्हें लेटर्स बताया जाता है, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स बताते हैं, फिर लेटर्स के कॉम्बिनेशंस को बताया जाता है। सो वो भी हमारी तरह नॉर्मली स्टडी करते हैं, ठीक है। मैथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। सो बेसिकली उनको पहले टच करना होता है, दे नीड टू आइडेंटिफाई, दे नीड टू लर्न एंड देन दे आर गोइंग टू स्टडी। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज, हर एक कैरेक्टर को याद रखना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स और मशीन्स, टाइपराइटर्स लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। तो अब बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल हो गया है क्योंकि अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं, प्रिंटर्स आ गए हैं जो कि ब्रेल सिस्टम की फॉर्म में, ठीक है, पूरा उसको प्रिंट कर सके, राइट। तो अभी तो ऐसा पॉसिबल है, पहले बहुत मुश्किल होती थी बिकॉज इस तरीके के कुछ स्पेशल प्रिंटर्स ही होते थे और कुछ ही जगहों पे होते थे, कुछ ही बुक्स होती थी। सो लाइक इट वाज नॉट दैट मच ऑफ गुड थिंग, राइट। पर अब काफ़ी ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। इवन हमारे पास और भी बहुत सारे एड्स हो गए हैं अब तो, ठीक है। तो सी नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स। सो बेसिकली देखिए ये जो है वो स्टाइलस है, यू कैन राइट इस तरीके से। जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं, दे कैन टेक नोट्स, राइट, बाय यूजिंग द स्टाइलस। सो दिस इज द मेन थिंग, और यही एक तरीके से उनके लिए एड भी है, उनके लिए हेल्पफुल चीज़ भी है, राइट। तो देखिए नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टैक्चुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, दैट द टैक्चुअल एड्स, ठीक है। तो मतलब वो टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑडिटरी एड्स यानी कि सुनने के लिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो हेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर हेयरिंग एड्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स, सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स विच आर नॉन ऑप्टिकल, ठीक है। नाउ सी विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, ऐसी चीज़ें जो कि वर्ड्स को मैग्नीफाई कर देती है। तो इट कैन बी लाइक अ ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट, कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटीरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेज। सो ये जो विजुअल एड्स होते हैं क्या कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर लाइट भी दे सकते हैं एंड दे कैन लाइक साइज इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी इमेज दूर भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक द मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट। तो देखिए टैक्चुअल एड्स जो सेकेंड तरीके के एड्स होते हैं, लाइक ऐसे जो एड्स जिनको हम टच करके दे कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, जिसमें ब्रेल, राइटर, स्लेटर, स्टाइलस होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है उन्हें विजुअली चैलेंज पर्सन्स को कि वो नोट्स ले सके, रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, राइट। तो उनको ये हेल्प करता है। सो दे नीड द ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड द स्टाइलस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑडिटरी एड, सुनने वालों के लिए जो एड होता है, इंक्लूड्स कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस। सो देयर आर मेनी ऑडिटरी एड जो कि नॉन ऑप्टिकल एड्स, दे कैन लाइक लिसन फ्रॉम दीज एड्स, राइट। टच करके वो लोग रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इफ दे आर लाइक उनको छोटा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, इफ दैट इज द प्रॉब्लम देन दे यूज द विजुअल एड। सो दीज आर द नॉन ऑप्टिकल एड्स फॉर दोज पीपल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एड जैसे होते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर्स, लाइक अगर उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया है तो जो कैलकुलेटर है वो बोलता है, राइट। तो दैट मीन्स इट वुड बी लाइक हेल्पफुल टू देम, वो सुनकर जो है अपना काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैनी कंप्यूटेशनल टास्क के लिए वो कर सकते हैं।
क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक एड है जो कि प्रिंटिंग मटेरियल को बहुत ही इनलार्ज कर देता है सूटेबली वी कैन से, ठीक है। सीडीज तो अब वैसे तो काफ़ी पुरानी हो गई, बट ये भी एक उस टाइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि नए नए आए थे एंड दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके अंदर वो बहुत ही यूजफुल एक तरीके से उन लोगों के लिए है, राइट। ऑप्टिकल एड्स के अंदर बाईफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोप एड्स, इतने सारी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं। While the lens combinations are used to rectify visual limitations, telescope aids are available to view chalkboard in class demonstration. So ये सब चीज़ें जो उन्हें मिलती हैं like the telescopic aids, ठीक है, या फिर they are like bifocal lenses, तो एक आई का जो भी डिफेक्ट है उसको क्लियर करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए अब काफ़ी हद तक we are going to get the modern things, right? So these are just because of the technology, right? So, इस तरीके से भी वी आर गोइंग टू हेल्प मैनी 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 पीपल। और ऐसा हो भी सकता है कि मे भी आप लोगों में से ही कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ के एंड दे क्रिएट गुड समथिंग गुड फॉर दीज पीपल, यू कैन डू दैट, राइट। तो फॉर दैट यू नीड टू स्टडी हार्ड, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं देन यू कैन हेल्प देम टू, ऑलराइट। सो देखिए यहाँ पर हमने जो अपना पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, ये लाइट का चैप्टर था, तो हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें स्टडी की हैं। वी हैव सीन द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट। वी हैव सीन लाइक द ग्लास स्लैब, उसके बाद ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट्स, राइट। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में फिनिश की है, राइट। अब मैं तुम्हें कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ दैट कैन बी टेकन एज द ऐड टू योर नॉलेज, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था वो क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। किसकी थिकनेस पे? जो मटेरियल है, जैसे कि ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब कितना थिक है उस पर डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फैक्ट, in a prism the emergent ray undergoes two refractions. The angle between the incident ray produced and the emergent ray produced is called angle of deviation. तो देखिए we all know that prism में से जब एक white light ray enter करती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट, है ना। तो क्या होता है, एक प्रिज्म में 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट टाइम तो वो लाइट रे प्रिज्म के अंदर एंटर होती है, सेकेंड टाइम जब लाइट रे प्रिज्म के अंदर से बाहर जाती है। सो देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस, एंड जो इंसिडेंट रे होती है एंड जो इमर्जेंट रे बाहर निकलती है उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट रे स्प्लिटिंग इनटू द 7 कलर्स इट इज फिनोमेना नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। रेनबो जो फॉर्म होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन बट बाय द यू कैन से द ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सी डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी व्हाइट वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू द एयर, उसी वजह से हमें बड़ा सा रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। एक फोटोग्राफिक कैमरा को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एक परमानेंट इमेज किसी ऑब्जेक्ट की बन जाए। But on a photographic film, it is based on the principle that if an object is placed beyond 2f of a convex lens, it forms real inverted and diminished image of the object between f and 2f on the other side of the lens. So we have seen this in the table. हम लोगों ने देखा था भाई कि जो images है वो कब हम कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो images कहाँ बनेगी, we have seen that, right? तो ये जो तरीका है उसको यूज़ करके, इसको एज अ प्रिंसिपल मान के जो फोटोग्राफिक कैमरा है उसका यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं मैग्नीफाइंग के लिए, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ को, हेवनली बॉडी जो कि बहुत दूर हैं, उनको देखने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है, एंड अ कन्वेक्स लेंस आई पीस जो कि स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है। और हमें कैसी मिलती है? इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, किसकी? ऑब्जेक्ट की, डेफिनेटली। सो एस्ट्रोनॉमिकल जो वो होते हैं टेलीस्कोप्स होते हैं, दे डू यूज द लेंसेज बट बहुत डिफरेंट फोकल लेंसेज, राइट। उनका अलग अलग फोकल लेंस वो यूज करते हैं। उसके अलावा देखो कलर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो आईज होती हैं जिसमें कोन्स जो होते हैं वो कलर्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, कोन्स रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये होते हैं 3 प्राइमरी कलर्स, ठीक है। रेड,
blue, green. These are the three primary colors. But when two primary colors is get matched, जब उनको mix कर दिया जाता है two primary colors को, we are going to get a secondary color. ठीक है? These are often regarded as the basic color in nature. ये तीन colors red, blue, green. These are the basic colors. ठीक है? Nature में भी इनको अगर हम मिक्स करेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शंस में तो हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं. तो देखो रेड और ग्रीन को मिलाएंगे वी आर गोइंग टू गेट द येलो, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे वी आर गोइंग टू गेट सियान, और रेड एंड ब्लू को मिलाएंगे वी आर गोइंग टू गेट द मैजेंटा. राइट, सो दीज आर व्हाट द सेकेंडरी कलर्स. ठीक है, इनको हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं. The primary colors when mixed in proper proportion gives us white light. इन्हीं primary colors को अगर हम proper proportion में use करेंगे तो we are going to get the white light. ठीक है, any other color अगर हम इन दोनों को मिलाने से करते हैं तो वो composite color या फिर secondary color में count up होता है. ठीक है, next आप देखो color of the object. हमारी eyes कभी भी किसी कलर को कैसे देख पाती है. Let's say you have a red pencil. तो आप कैसे देख पा रहे हो कि वो रेड कलर है. आपको रेड कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू कलर कैसे दिखाई देता है. तो एक्चुअली जो रेड ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, व्हाइट लाइट तो 7 कलर्स की होती है. राइट, तो सारे के सारे कलर्स उस ऑब्जेक्ट पे जाते हैं. वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, जो रेड कलर की ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, वो 6 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, रेड कलर को तुम्हारी आंखों तक पहुंचा देगी. तो यू आर गोइंग टू सी दैट ऑब्जेक्ट एज द रेड ऑब्जेक्ट. सिमिलर एज द ब्लू. कोई अगर ऑब्जेक्ट ब्लू है तो क्या होता है एक्चुअली में, वो ऑब्जेक्ट ब्लू रंग को छोड़ के बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू कलर को आपकी आंखों तक पहुंचा देती है. तो यू आर गोइंग टू गेट दिस दैट ब्लू कलर. राइट, इस तरीके से हम बहुत ही डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं और इवन ऑब्जर्व भी कर पाते हैं इन द नेचर. ऑलराइट, सो दिस इज इट. वी आर गोइंग टू एंड अप दिस लेक्चर हियर ओनली. Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.